So he is enjoying the samosa and snacks. So let him enjoy it. And so we are going to start the program. And before it is customary, before starting the program, we invite Mr. Sandeep Bhatta. Here. To say something about Noida Management Association and welcome our fellow colleague Dr. Joginder Singh, who is the speaker today, and welcome him now by giving a bouquet to him. Bouquet there. Good evening to all. Welcome all the members here, all the participants of this program. And you are most welcome here. And अभी थोड़ा सा मौसम भी अच्छा हो गया है, everything is looking very fine outside also. थोड़ा pollution तो है लेकिन ठीक है, अभी चलता है. तो हमारे इसी part of day to day life. So pollution तो ठीक है. So today's program is very important program, stress management. You can just you will definitely appreciate that everybody, each and every person, either maybe the child, maybe the elder person, maybe the elderly, and the more elderly person, everybody nowadays is in some sort of stress. किसी भी तरह का हो सकता है. अभी हमने पॉल्यूशन की बात की, पॉल्यूशन का नाम सुनते ही सबको थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हो गया होगा. वापस भी जाना है पॉल्यूशन के अंदर. तो this is all around there, the stress is there. Everybody is suffering from this stress, and it is very important how to understand how to manage this stress. Nowadays this is very important. So हम अपने उसमें देखते हैं बच्चे अपने एग्जामिनेशन स्ट्रेस में हैं, ऑफिस गोअर्स लोग अपने ऑफिस के स्ट्रेस में हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टाइमलाइंस आर देयर एंड दे हैव टू डू देयर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करना है. और बाकी फैमिलीज के अंदर बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं कि सो मेनी थिंग्स आर टू बी मैनेज इन द हाउस होल्ड इटसेल्फ. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एंड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डे टू डे लाइफ में हर एक किसी को कहीं ना कहीं टच करता है. सो डॉक्टर साहब ने हमारे को ये बोला, डॉक्टर साहब ने जब इस सब्जेक्ट का आइडिया दिया, डॉक्टर साहब खुद बहुत एक्सपर्ट आदमी है. मैं इनका पढ़ूंगा अभी एक सेकंड के लिए. मैं लेट मी जस्ट स्पीक अबाउट डॉक्टर जोगिंदर आल्सो. Dr. Joginder basically he is into academia, प्रोफेसर हैं GSS कॉलेज जो हमारे यहाँ सामने हैं. डॉक्टर योगेंद्र सिंह, मैं इसको थोड़ा पढ़ लेता हूँ, मेरे ख्याल से थोड़ा अच्छा रहेगा. इतना लंबा है, इनके बारे में इतना सारा लिखा है तो मेरे को याद भी नहीं रहेगा इतना, तो मैं पढ़ के ही बता पाऊँगा. इनके जो क्रेडेंशियल्स हैं बेसिकली. Dr. Joginder Singh is having 22 years of long intensive career of education as well as in the corporate world. ये बिजनेसमैन भी हैं, बहुत सारे हमारी इससे बात होती है. नॉट ओनली इन एकेडेमिया, ही डू सॉर्ट ऑफ बिजनेसेस आल्सो, मैनी बिजनेसेस आल्सो. तो ये ऑल अराउंड आदमी है हर तरह से. ही इज प्रेजेंटली वर्किंग एज ए प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जेएसएस अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा. ही हैज कंप्लीटेड हिज पीएचडी इन मैनेजमेंट एट वेरी अर्ली एज ऑफ 25. हमको तो 25 में मैं भी ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ इसके अंदर. मैं हैरान हूँ 25 में, तो हमको शायद पीएचडी पता भी नहीं है पीएचडी क्या होता है. He has written several books on marketing management, organizational behavior, economics, human value, industrial sociology. One book named International Business Marketing Management have been reviewed in many national and international journals and newspapers. He has written number of articles in national and international journals. Apart from technical papers, many non-technical articles and views on social issues have been published in leading newspaper. रेगुलरली आता रहता है इनका, हम लोग कई बार रियलाइज करते हैं काफ़ी बहुत सारे तो पता नहीं कहाँ तो अवार्ड ही देते रहते हैं. ये हर महीने में एक दो तो आ ही जाते हैं हमारे पोस्ट. His achievement has been appreciated, awarded and recognized by various agencies. Over a period of time, he has been visiting faculty to
his family, he is having vast knowledge of industrial setup and development, which he can add to his profile by providing practical knowledge to the students. Apart from the academia, he is very much engaged in social activities for the upliftment of society as a whole. Apart from this, he is also having NCCC certificate, which finally provides him the skill for discipline. मुझे लगता है इससे अच्छा ये होता है कि उन्होंने क्या नहीं किया है वो मैं बता देता, क्योंकि उसके अलावा सब कुछ इन्होंने किया है और ये सब कुछ करते हैं, तो फिर वो आसान रहता है, इतना पढ़ना नहीं पड़ता है मेरे ख्याल। तो डॉक्टर योगेंद्र सिंह मल्टी फेस इनकी क्वालिटीज़ के बारे में इतना बताया जाए शायद कम है, और वैसे भी ही इज़ डाउन टू अर्थ पर्सन। अभी हम भी इनसे जब मिलते हैं बात करते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे एसोसिएशन में प्रेजेंटली सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ये है, तो इनकी काफ़ी गाइडेंस रहती है हमारी सारी एक्टिविटीज़ के अंदर, सारी चीज़ों के अंदर हम लोग काफ़ी इनसे कंसल्ट करते रहते हैं, डिस्कस करते हैं। तो एनएमए की जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनमें कहीं ना कहीं इनका टच है, इनका कंट्रीब्यूशन है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है इस तरह से। सो डॉक्टर सर ने मतलब ये स्ट्रेस मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, इन्होंने खुद इस चीज़ को टेकअप किया कि क्योंकि देखिए ये खुद भी बहुत इस तरह की चीज़ों के अंदर डील करते हैं, स्टूडेंट्स के साथ ये रात दिन रहते हैं कि स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कैसा होता है, बिजनेस ये करते हैं तो बिजनेस का स्ट्रेस कैसा होता है, इंडस्ट्रीज में ये काम करते हैं, ये सब चीज़ों को इन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों का हमको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है सेशन के अंदर। तो आई वेलकम डॉक्टर योगेंद्र सिंह इस चीज़ के लिए। तो थैंक यू फॉर कमिंग। मैं आपको आई विल जस्ट कम हियर। ये इधर अरे तो बाद में करना तो हम टोकन ऑफ अप्रिसिएशन तो आई वेलकम डॉक्टर योगेंद्र टू जस्ट शेयर हिज थॉट्स। सरस्वती आवाज कहाँ से आ रही है? आप ही को सरस्वती बोल रहा है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर्वप्रथम यहाँ पे हमारे एनएमए के अध्यक्ष जी मित्तल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बड़ा बोझ मेरे सर पे दे दिया, इतना लंबी चौड़ी बातें बोल करके। ये कायदे से स्पीकर के ऊपर एक बड़ा प्रेशर हो जाता है, जब पहले इतनी भूमिका बन जाए तो उसके अकॉर्डिंगली तो मुझे भी स्ट्रेस हो गया। और सेक्रेटरी शर्मा जी, सेक्रेटरी साहब, ट्रेजरर साहब गुप्ता जी, और यहाँ पे आए हुए सारे विशिष्टगण, अपने आप में जो संस्थाएं हैं, तो मैं सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हमारे बीच में बैठी हुई एक मातृशक्ति, उनको भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, क्योंकि उनका एक स्पेशल आशीर्वाद के तौर पे वो आप आई हैं। तो पहले तो मैं भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतनी 75 साल की उम्र में और समय निकाल करके माताएं चढ़ भी नहीं पा रही थी, तो समय निकाला, तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपके इस आशीर्वाद के लिए, स्नेह के लिए, प्रेम के लिए। आज का मेरा जो टॉपिक है, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। वी ऑल आर कनेक्टेड। एंड अगर हम डाटास की बात करें तो 40% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द ग्लोब, 40% व्यक्ति इस स्ट्रेस से ग्रसित है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज। इट हार्डली मैटर्स। जैसे ही हमें सोचने समझने की, जानने की क्षमता हुई,
तब से हमने उस स्ट्रेस को ही पहचान लिया। और उस 40% में से बड़ा ही जान के आपको आश्चर्य भी होगा, ये डाटास मैं जानबूझ के ना, चूंकि बड़े डरावने से होते हैं कुछ डाटास, तो अगर हम WHO की साइट पे जाएंगे और बहुत सारी जो फ्री डाटास अवेलेबल वाली साइट्स उन पे अगर हम जाएंगे देखेंगे, तो जो डरावना जो डाटास का जो स्केल है वो 3/4 लोग उसमें से आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो मैंने जानबूझ करके उन स्लाइड्स में उनको नहीं डाला है, क्योंकि हमें स्ट्रेस क्रिएट नहीं करना, बस जस्ट मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। लोग परेशान हैं, दिक्कत में हैं, और कुछ दिक्कतें हमारी खुद क्रिएट की हुई हैं। तो सबसे पहले चूंकि यहाँ पे बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, मुझसे उम्र में, ज्ञान में, शिक्षा में, एक्सपीरियंस में मुझसे बहुत ज़्यादा आप लोग आगे हैं, तो मैं यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं बड़ा पहले क्लियर एडवांस बता दूँ, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनी रॉकेट साइंस, बट बचपन से एक चीज़ देखी थी, सुनी थी, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। बहुत सी चीजें ऐसी जो लोग जानते हैं, पहचानते हैं, बट इत्तेफाक की बात है कि कई बार उनको हम ओवरलुक कर देते हैं, कई बार हम उनको पहचान नहीं पाते, कई बार उनको हम हर चीज की समझ हमें हो, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। तो बातें हम वही डिस्कस करेंगे जो अमूमन हम सबको आसपास पता भी होगी, बट स्टिल जब मुझे अपना पहला एक्सपीरियंस याद है गाड़ी का, और पीछे भी एक गाड़ी खरीदी थी, उसका भी एक्सपीरियंस याद है। वो जो चाहे गाड़ी आप 1 लाख की परचेज करिए, चाहे आप 5 करोड़ की गाड़ी परचेज करिए, वो जो आपको जब डिलीवरी देता है गाड़ी की, तो बताता है साहब इससे लाइट जलती है, ये गाड़ी की चाबी है, इसको गाड़ी की चाबी ऐसे लगाते हैं, और इसको यहाँ पे ब्रेक सेंस है, थोड़ा प्लीज बी कॉशियस सर, है ना। तो वो बता रहा होता है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा आप कितने बड़े आदमी, कितनी गाड़ियां आपके पास हैं, बिकॉज इट इज हिज मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। हम जो बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा मैं पहले ही खेद अपना व्यक्त कर दूं। मैंने अभी, चूंकि मैंने यहाँ पे आके जब अपनी स्लाइड्स चलाई, तो शायद कुछ वीडियो कॉम्पेटिबिलिटी नहीं है, तो मेरे पास कुछ वीडियोस थे जो मैं साथ में शेयर करता, बट अनफॉर्चुनेटली मैं स्टार्टिंग में माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि वो शायद चल नहीं पाया कुछ टेक्निकल इश्यूज से। तो मैं ट्राई कर रहा था, बस नेट नहीं चल पाया, तो जैसा भी होगा आप सब लोगों के सहयोग से आगे चलेंगे। सबसे पहले व्हाट इज स्ट्रेस? द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज स्ट्रेस? See, we all know it is basically a physiological response, a pressure which is created by the stimuli, जो हमारे दिमाग में चलता है, दिमाग में जो असर कर जाता है, दिमाग पे जो छा जाता है, दिमाग को जो भा जाता है, दिमाग को जो लग जाता है, और दिमाग से कई बार हमारे दिल तक पहुंच जाता है। और जब दिल का और दिमाग का जब तालमेल जब बैठ जाता है, तो कई बार वो आपको आसमान पे ले जाता है, और कई बार वो आपको नीचे गिरा देता है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो बट इन जनरल द स्ट्रेस इज परसीव्ड एज डेंजरस टू द बॉडी। इट इज डेंजरस टू द बॉडी। आदमी को अंदर से पूरा खोखला कर देता है, तोड़ देता है, बिकॉज चिंता चिता समान। ये कहावत पढ़ी थी, सुनी थी, चिंता चिता समान। थोड़ा और समझ लेते हैं, क्योंकि जो हमारी जर्नी है स्ट्रेस की समझने की, थोड़ा इसको और समझने कुछ पॉइंट, जो कुछ कॉन्सेप्ट्स बीच में आएंगे। तो स्ट्रेस तो हमने समझ लिया कि लोड ऑन द सिस्टम, हमारे दिमाग पे जो हमारा CPU है, जो हमारा कंप्यूटर है, उसके ऊपर एक लोड बन गया, एक प्रेशर बन गया, वो तो स्ट्रेस हो गया। देन स्ट्रेसर इज स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कोई कारण, इट कैन बी इंटरनल, इट कैन बी एक्सटर्नल। कई बार हम खामखा परेशान होते हैं, लोग कहते हैं यार तुम्हारा क्या मतलब है इससे, तुम्हें क्या टेंशन है भाई, मैं खामखा, मैं कौन, खामखा। इट कैन बी इंटरनल, इट कैन बी एक्सटर्नल। देन स्ट्रेन, स्ट्रेन इज बेसिकली
prolonged impact of stressor on the system. जब वही स्ट्रेसर जब लंबा बन जाए, लंबा चल जाए, तो वो स्ट्रेन का रूप धारण कर लेगा. And then comes the stress reaction, that is the ultimate reaction on your body. कि आपको क्या नफा नुकसान हुआ, वो हम आगे कैलकुलेशन करेंगे और एनालिसिस करेंगे. ये स्ट्रेस वीडियो चल नहीं पाया. वैसे ये स्ट्रेस वीडियो बेसिकली आई हैव टेकन, मैं जस्ट बताता हूँ, मैंने रामायण से लिया था. तो रामायण में एक स्टेज आ जाती है जहाँ पे कि वो अगले दिन लास्ट युद्ध होना है, और उस लास्ट युद्ध के लिए 4 कैरेक्टर्स को दिखाया गया है. 4 कैरेक्टर्स कौन से हैं? एक रावण है, एक राम है, एक सीता जी है और एक मंदोदरी हैं. चारों ही अपने अपने तरीके से पूरी रात नहीं सोए. चारों परेशान थे क्योंकि यही रात अंतिम, यही रात बहाली, इसी रात की कहानी है सारी. तो स्ट्रेस था, कौन जिएगा कौन मरेगा कोई नहीं जानता. हर कोई अपने लिए परेशान, हर कोई अपने लिए टेंशन. बहुत सी क्षति हानि हो चुकी है, बहुत से लोगों को खो चुके हैं. रावण सब कुछ हार चुका है, अकेला बचा है. कल क्या होगा डोंट नो. स्ट्रेस, पूरी रात जागना. भगवान राम स्वयं भगवान है, पर वो भी परेशान है. तो जब भगवान परेशान है तो आम आदमी क्या दिशा, आम आदमी की क्या औकात. भगवान भी परेशान है कि भाई मैं इतना लंबा समय काट करके अपनी धर्म पत्नी के लिए, हालांकि वो खाली धर्म पत्नी के लिए नहीं गए थे, वो समाज कल्याण के लिए गए थे. माता सबरी ने कहा था कि राम तुम रावण को मारने आए हो कि नहीं मां, मैं समाज कल्याण के लिए आया हूं. रावण को तो अगर लक्ष्मण चाहते तो अपने एक अंगूठे से अगर तीर चला देते तो रावण मर जाता. आई एम नॉट हियर फॉर दैट. मंदोदरी इसलिए परेशान है, सबको खो चुके हैं, अब पति बचा है, कल वो भी खत्म हो जाना है. स्वयं नारायण है. और माँ सीता अपने लिए परेशान है कि 14 साल का वनवास, फिर यहाँ लंका में वास, अब पता नहीं कल क्या होगा. दुष्ट रावण जैसे भी कहे. ये वीडियो था, चल नहीं पाया, बट जो था मैंने सारा आपको बता दिया. तो जो स्ट्रेस है, इट अफेक्ट्स अस इन मेनी वेज. चाहे हमारा शरीर हो, चाहे हमारा बिहेवियर हो, चाहे हमारा इंटरेक्शंस हो, चाहे हमारे थॉट्स हो, चाहे हमारी फीलिंग्स हो. इट ओवरऑल अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस. Then signs of or outcomes of stress. देखिए मैंने पहले ही कहा था, I told you in the beginning itself कि डाटास बड़े भयानक हैं. मैंने जानबूझ के प्रेजेंट नहीं किए यहाँ पर, लेकिन n number of pains, headache, then we have chest pain, आपका फीलिंग लाइक योर हार्ट इज रेसिंग, सब स्ट्रेस है. कंपन चालू हो जाएगा बॉडी में, ट्रबल स्लीपिंग, डिजीनेस, आपके मसल टेंशन, कई लोगों के वो जबड़े बनने चालू हो जाते हैं, कई लोगों का स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है हमारा, वीक इम्यून सिस्टम. अभी एक सभी लोग दौर से गुजरे, बुरा दौर था पूरे विश्व के लिए, कोरोना. तो जो कोरोना काल से निकले उसमें आगे कौन जिएगा कौन मरेगा उस चीज का अलग स्ट्रेस था. लोग दौर से गुजरे, इम्यून सिस्टम, देन हाई ब्लड प्रेशर, आपका लीवर प्रॉब्लम्स, लंग्स प्रॉब्लम, और आजकल जो कैंसर एक बीमारी जो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है. रिसर्चेस हैव प्रूव्ड that one of the reason of cancer is stress. अभी रिसर्चर्स ने ये भी प्रूव किया है अक्रॉस द ग्लोब. माइग्रेन, हर दूसरा तीसरा आदमी परेशान है माइग्रेन से. हेडेक हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, उसके बाद फिर वो डिस्प्रिन खा रहे हैं, पेन किलर्स ले रहे हैं, डायरेक्टली अफेक्टिंग द किडनी, डायरेक्टली अफेक्टिंग द एंटायर सिस्टम. एट द एंड ऑफ द डे
वी आर डैमेजिंग आवर बॉडी चल रहा है। इमोशनल एंड मेंटल सिम्टम्स अगर हम बात करें तो एंजाइटी, सैडनेस, डिप्रेशन, आपका पैनिक अटैक्स, ब्रेन अटैक्स, हमें पता भी नहीं पड़ता। एंड देयर आर ओकेजन्स, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, देयर आर ओकेजन्स, लोग कितनी शिद्दत और सरलता से इसे कह देते हैं बहुत भला आदमी था, चुपचाप चला गया, किसी को परेशान नहीं किया। तो किसी को परेशान ना परेशानी की बात नहीं थी। द लेवल ऑफ स्ट्रेस has rose to such a level that it has converted into a brain damage और a panic attack। कई बार लोग बहुत पैनिक कर जाते हैं, तो हम लोग लाइट लेते हैं, तुम पैनिक मत हो, बट अगेन देयर इज नो पैरामीटर ऑफ दिस पैनिकनेस, हमें संभालना चाहिए। हालांकि इस पैनिक अटैक के लिए छोटी सी एक्सरसाइज है, मैं आगे चलूंगा, मैं डिस्कस करूंगा। अच्छा, अब दिक्कत क्या है, देखिए यहाँ पर आप सभी लोग बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। अपनी गलती, अपनी कमी मानना बड़ा डिफिकल्ट काम है, वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दिस थिंग। लोग बड़ी बड़ा में, हवाबाजी में लोग क्या कहते हैं, भाई मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, क्या है भाई, काम ठीक चल रहा है, बालक बच्चे बड़े हो गए हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, घर है, मकान है, दुकान है, मुझे क्या स्ट्रेस है। लेकिन शुगर भी है, बीपी भी है, टेंशन भी है, हाइपर टेंशन भी है, सब कुछ है, बट मुझे स्ट्रेस नहीं है। बेटा क्या कर रहा होगा, बहू क्या कर रही होगी, बेटे ने ये कर दिया, बेटी का ये हो गया, पड़ोसी ने वो कर दिया, पर मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस और नो स्ट्रेस, ये सवाल, दिस इज ए क्वेश्चन व्हिच वी हैव टू गिव आंसर टू आवरसेल्फ। इसके लिए कहां चला गया भाई, चलिए आगे, शायद वो कंफर्टेबल नहीं है। इसके अंदर स्ट्रेस और नो स्ट्रेस में आप सबसे पहले आता है आपकी पर्सनैलिटी। What type of personality you are having? कई लोग बड़े बोल्ड होते हैं। There are people who are extrovert, there are people who are introvert, there are people who have tough personality, there are people who are very simple, very sober, छोटी छोटी बातों से वो घबरा जाते हैं। Your personality वो डिफाइन करेगी स्ट्रेस या नो स्ट्रेस। There are people who have very strong personality, they don't take stress, छोड़ना चाहते हैं। The second thing is your overview about the life, आप जीवन के बारे में क्या सोचते हैं। I have seen a number of people who are very casual towards their life, छोड़ना यार, जान दे यार, क्या फर्क पड़ रहा है यार। किसी ने गाली दी, वो कह रहा है और मुस्कुरा रहा है। साथी हमारे कह रहे हैं यार वो गाली दे रहा था आपको, ठीक है यार कुछ दे ही तो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, अरे कुछ दे दिया हमें भाई, ठीक है दे दो। एक क्या होता है, किसी ने तू बोल दिया, उस पर लड़ मरेंगे। योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स द लाइफ, वो कहते हैं ना कि हर फिक्र को मैं धुएं में उड़ाता गया। बहुत बहुत नमन आशीर्वाद के लिए हमारे भाई सिंह साहब आ चुके हैं, एस.एन. सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए सर प्लीज। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में योर थॉट प्रोसेस, मैं सिंह साहब को रिक्वेस्ट करूंगा आप योर थॉट प्रोसेस टुवर्ड्स लाइफ, आप लाइफ के बारे में आपका ओवरव्यू क्या है, और ये आप बना भी सकते हैं।
एक होता है आपका बड़ा ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको स्ट्रेस होगा या नहीं होगा। स्ट्रेस है बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर जस्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ आइडियाज। भूख इसलिए है, खाना नहीं है। अंधेरा इसलिए है, उजाला नहीं है, लाइट नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर जस्ट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ आइडियाज। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज क्या है वो भी डिफाइन करेंगी स्ट्रेस और नो स्ट्रेस। बहुत सारे लोग होते हैं कंपनीज में, घरों में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कहते ठीक है यार एक आइडिया है मेरे पास, डोंट वरी, एक आइडिया है, क्यों परेशान हो रहे यार, कुछ लगा लेंगे दिमाग, कुछ सोच लेंगे, कुछ कर लेंगे। तो इट मींस दे हैव ए पोटेंशियल, दे हैव ए कैपेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट दी सॉल्यूशंस टुवर्ड्स दी प्रॉब्लम। और जिसके पास, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, जिसके पास आइडियाज जनरेट करने का पोटेंशियल है, क्रिएटिविटी है, उसका स्ट्रेस लेवल इन कंपेरिजन टू अदर्स वो कम होगा। बिकॉज आदमी समस्या से परेशान होता है, जब समस्या का सॉल्यूशन निकाल लेगा, जब पता है अरे क्यों टेंशन ले रहे हो यार, भाई मैं सुबह के जाऊं कॉलेज में, मेरा पेपर है, मुझे एग्जाम दिलवाना है, अरे सर क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं छोड़ दूंगा ना। भाई गाड़ी नहीं मिलेगी, अरे सर मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगा ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, वन इज यूट्रेस और पॉजिटिव स्ट्रेस। सी अति हर चीज की बुरी होती है, पर वो चीज अगर मात्रा में हो तो जरूरी भी है। जस्ट लाइक फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी ए क्रीपिंग इन्फ्लेशन इज रिक्वायर्ड। Until and unless there is a creeping inflation in the economy, we cannot even think of attaining any growth or development in the economy. Similarly, जीवन में आगे बढ़ने के लिए to get the success, to achieve our goals, again be it personal or professional, the positive stress is very very much required. जब तक बच्चे को एग्जाम की टेंशन नहीं होगी, पॉजिटिव, पागलपन नहीं, पॉजिटिव, यस मेरी जिम्मेदारी है, मुझे कल मेरा एग्जाम है, 10 दिन पहले मैं जीत गया, 6 महीने पहले जीत गया। जब तक पेरेंट्स को चिंता, स्ट्रेस नहीं होगा कि बच्चे की फीस देनी है, बच्चे का ध्यान रखना है, बच्चे का टेक केयर करना है, बच्चा कॉलेज पहुंचा नहीं पहुंचा, जब तक एम्प्लॉय को टेंशन नहीं होगी, कंपनी मेरी है, मेरी वहां जिम्मेदारी है, मुझे वहां टाइम पे पहुंचना है, मुझे टारगेट्स अचीव करने हैं, जब तक बॉस को चिंता नहीं होगी, ये एम्प्लॉय मेरे हैं, इनका मुझे ध्यान रखना है, टाइम पे सैलरी देनी है, उनके वेलफेयर का इंतजाम करना है, ख्याल रखना है, तो तब तक यू कैन नॉट अचीव सक्सेस और ग्रोथ इन एनी सेक्टर, चाहे वो घर हो, चाहे वो परिवार हो, और चाहे आपका व्यवसाय हो, पर्सनल और प्रोफेशनल। डिस्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस, ये हमारा मुद्दा है। दैट इज द डिजास्टर, द डिस्ट्रॉयर, द प्रॉब्लम क्रिएटर, जिससे हम सब परेशान रहते हैं अमूमन। और मजे की बात क्या है, यहां पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ, मैं दावे के साथ कह रहा हूं और पूरी अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं, इस सदन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आज, कल, परसों, 10 दिन पहले, साल, 2 साल पहले स्ट्रेस ना हुआ हो। नॉट एट ऑल। स्ट्रेस इज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हाँ, विद बाय टेकिंग वेरियस मेजर्स व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ स्ट्रेस, और टाइम भी उसको मैनेज कर सकते हैं ताकि वो एक डेंजरस रूप ना धारण कर ले। नेगेटिव स्ट्रेस साइकिल, ये एक कोकस है, ये
घूमता रहता है, सर्कल है, और इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक बार इसके मकड़ जाल में आप फंसे और दिल के और दिमाग के आपका जो सर्किट ऑन हुआ, तो समझ लीजिए कि आपने नेगेटिव स्ट्रेस साइकिल कंप्लीट कर दिया। स्टार्ट होगा स्ट्रेस हल्का विद एनी टॉपिक, इट विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव थॉट्स, वो नेगेटिव थॉट्स आने आपको चालू हो जाएंगे, वहां से टर्न आउट होगा नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स, आपके अपने आप नेगेटिव मूड, आपका दिमाग खराब, जो रिफ्लेक्ट होगा, जो दिखेगा, समझ पाएंगे उसको, आप देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, आप खुद, आपके साथी, आपके परिवारजन, आपकी सराउंडिंग्स। लास्ट में नेगेटिव फिजिकल इंपैक्ट ऑन योर बॉडी, जो कि कई बार हमें ऑन द स्पॉट इमीडिएट, कई बार a number of people who just in agitation they falls down, लोग गिर जाते हैं। इतना तेज कपकपी आती है, स्ट्रेस हुआ, गुस्सा बन गया उससे, और ऑटोमेटिकली वो लोग गिर भी जाते हैं। इसका कोई लिमिट नहीं है। शरीर, ये दिमाग है ना, कितना लोड पड़ गया उस पर। भाई 20 हॉर्स पावर की आपकी मोटर थी और लोड डल गया उस पर ज्यादा, तो आ गया, क्या नाम है, वो हो गई पुली फेल, पुली घूम गई पूरी भैया, बस काम खत्म है। अब कॉजेस ऑफ स्ट्रेस, ये मैंने कुछ लिस्ट किए हैं, ऐसा नहीं कि यही सारे हैं, जस्ट इन जनरल कॉमन कुछ इकट्ठे कर दिए। भाई सबसे पहले बीइंग अनहैप्पी इन योर जॉब, अगेन इट कैन बी पर्सनल, इट कैन बी प्रोफेशनल। जॉब की परिभाषा अगेन इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, हम किस चीज को अपना जॉब मान रहे हैं। माता जी बैठी हैं, उनके लिए जॉब अपने घर की जिम्मेदारी है, अपने घर के कामकाज हैं, अपने बच्चों की देख रेख है। जो एम्प्लॉय है उसके लिए जॉब कंपनी का जॉब है, जो मालिक है उसका अपना अलग तरीके जॉब की परिभाषा है, स्टूडेंट की जॉब की परिभाषा दूसरी है, नेतागण है उनकी परिभाषाएं दूसरी है, लाइकवाइज। तो बीइंग अनहैप्पी इन योर जॉब, जैसे ही वो अनहैप्पीनेस आपके अंदर चालू होगी तो डिससैटिस्फैक्शन, आपके दिल दिमाग में कुंठा पैदा होगी और मन कुंठित रहेगा। मन कुंठित रहेगा तो स्ट्रेस की तरफ हम पलायन चालू कर देंगे। देन मेडिकल इश्यूज, इंसान टूट जाता है अंदर से जब अपने आप से इंसान नजर ना मिला सके, अपने आप से ही। देखिए सबसे बड़ी मोहब्बत क्या होती है, लव योरसेल्फ, सबसे बड़ी मोहब्बत, सबसे बड़ा प्रेम, सबसे बड़ा ज्ञान। और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख। तो जब इस सुख से हम वंचित होते हैं तो अदर्स कैन ओनली फील पिटी फॉर यू। देयर आर पीपल हु कैन स्पेंड मनी फॉर यू, आपका अस्पताल का बिल दे सकते हैं वो, बट पिक्चर तो है नहीं। देखो साहब, पिक्चर में होता है ना कि चोट तुझे लगे तो दर्द मुझे होता है, तो वो भाई चोट तो जिसको लग रही दर्द उसी को ही होगा। आप खाली उसको अरे दर्द हो रहा है क्या, आप खाली इतना बोल सकते हैं, नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन दैट, आप दवा लगा सकते हैं। तो जैसे ही मेडिकल इश्यूज आते हैं इंसान अंदर से एक डिप्रेशन का शिकार होना चालू होता है। बिकॉज जो इंसान दौड़ता था, जो इंसान चलता था, जो इंसान हवा से बातें करता था, आज जब वो देखता है वो चल नहीं पा रहा, फिर नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, और लोग उसको असहाय निगाहों से देखते हैं, तो अपने आप एक मन में एक कुंठा पैदा हो जाती है और कहीं ना कहीं हम लोग डिप्रेशन का और जो स्ट्रेस मेरे पैर में लगी थी। मैं पर्सनल आपको बता रहा हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठने वाला आदमी हूँ, बड़ा ही एकदम सिस्टमेटिक अप्रोच का आदमी हूँ। मेरे पैर में लगी, मेरा ऑपरेशन हुआ, तो जब मैं बिस्तर पे इधर कैंडुला उधर चार, इधर वो पूरा ताम जाता फिल्मी अंदाज में, फोर्टिस वाले देखते हैं, पहुंचते ही आपको वो पूरा हिसाब का बना देते हैं, पिक्चरों की पूरी रील बन जाती है। तो जब वहां पे देखा तो वॉशरूम में जब उन्होंने कैंडुला वगैरह निकाल दिया था, तो वॉशरूम जाने के लिए भी एक अटेंडर था साथ थे।
तो जाने के लिए जब बात आई तो मैं इतना असहाय फील किया कि मैं 4 बजे उठ करके जिम जाने वाला आदमी, दुनिया को सलाह देने वाला और हेल्थ टिप्स देने वाला आदमी आज इतना असहाय है कि मेरे को सहारा लेना पड़ रहा है कि भाई साहब जरा वॉशरूम तो चल रहा था। जब एक बार गया, जब आके वापस जब मैं लेटा तो शाम का वक्त है साहब, नॉट ओनली फॉर प्रेजेंटेशन, मन में ऐसी कुंठा हुई कि हे ईश्वर, क्या यही दिन देखने बाकी थे? क्या यही जीवन है? ऐसे जीवन का क्या फायदा है? तो जितना जीवन दो, स्वस्थ जीवन दो, अच्छा जीवन दो, लंबी उम्र नहीं, क्वालिटी लाइफ चाहिए, क्वालिटी लाइफ। तो सेकंड टाइम मैंने अंदर से अपने आप को इकट्ठा किया। रात को करीब 3 बजे जब मैं यूरिन पास करने के लिए जब मैं उठा तो मैंने हिम्मत जुटाई कि अब मैं किसी सपोर्ट को इकट्ठा नहीं करूंगा, बिकॉज ये जो स्ट्रेस अगर मेरे घर में दिमाग में घर कर गया तो इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, और मैं अपने आप गया। तो ये जो मेडिकल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, उधार की जिंदगी जी रहे हैं हम लोग, क्रेडिट कार्ड और दे दिया है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है हमारे पास। अरे हम कह रहे हैं जस्ट ऑटो लोन बंद कर दीजिए आप, आपकी ट्रैफिक की प्रॉब्लम आधे घंटे में खत्म। कितने लोग गाड़ी खरीदेंगे भाई? एक अपने लिए गाड़ी चाहिए, अब अपने घर के लिए गाड़ी चाहिए, वाइफ के लिए गाड़ी चाहिए, लाइन लगा रखी गाड़ी। क्यों? 25,000 50,000 पे जमा करिए आराम से, 7 साल 8 साल और 10 साल की आसान किस्तों में देते रहिए, बढ़ाइए पोल्यूशन, क्या दिक्कत आ रही है? बट कभी वो किस्त टूट रही है, कभी होम लोन, घर भी लोन पे है, गाड़ी लोन पे है, बच्चे लोन पे पढ़ रहे हैं, अब मोबाइल लोन पे ले लिया है, फिर हमें इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, उसके लिए लोन लेते थे, अब नया सिस्टम चालू कर दिया अमेज़न ने, देखा इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स। तो यानी कि और मजा आ गया। अब तो उधार लेने में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ले तो लिया, आईफोन 14 चलाएंगे, चमकाएंगे लोगों को। बट फाइनेंशियल इश्यूज हमने क्रिएट कर लिए, 2,000 3,000 4,000 5,000 करते करते बंडल बन जाता है। एंड आई एम टॉकिंग ऑफ मेजॉरिटी। मैंने बहुत से लोग देखे, सर्वे किया है मेरे साथ, 500 लोगों का स्टाफ तो मेरे साथ ही है। उन 500 लोगों के स्टाफ के अंदर वो सारे कितनी उधार की जिंदगी जी रहे हैं मैं जानता हूं। फिर परेशान रहते हैं, अरे सर बच्चों की फीस का टाइम आ गया। मैं तो भैया क्यों लेके आए थे आईफोन 14? किस पंडित जी ने कहा था कि ये चलाओगे तो ही चलेगा? तो समझने वाली बात है। देन पर्सनल लाइफ इश्यूज, आजकल जिस तरीके से जो हमारी मानवता का हनन हो रहा है, द वे वी आर गोइंग इन ए डायरेक्शन जहां पे कि कोई सुनने को तैयार नहीं, एक सेकंड एक दूसरे की, मतलब स्पेस है ही नहीं। हस्बैंड वाइफ में इतना स्पेस नहीं बचा है आए दिन। और आई एम वेरी सॉरी, कोर्ट में जाइए, फैमिली कोर्ट में जज साहब के पास टाइम नहीं है, इतने केसेस हैं। तो अब काउंसलर सिस्टम चालू हो गया, वकील साहब बैठे हुए हैं, वो काउंसलर सिस्टम चालू हो गया, 10-10 20-20 काउंसलर्स बैठे हुए हैं कि भैया ये तलाक की अर्जियों से पहले इन्हें समझाओ बुझाओ, 3-3 4-4 इनकी काउंसलिंग करवा लो, हो सकता है क्या नाम हमारा टाइम बच जाए गलती से। पर्सनल लाइफ इश्यूज, बिकॉज फॉल्स ईगो, पीपल आर लिविंग इन फॉल्स ईगो, झूठी शान और झूठा अभिमान, उसमें जी रहे हैं हम लोग। ये मेन कॉजेस ऑफ स्ट्रेस, पर्सनल लाइफ इश्यूज। कोई सुनने को राजी नहीं, आए दिन घर की कहानी हो गई है। और थैंक्स टू दिस टीवी मूवीज, और मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो सीरियस इतने अच्छे हो गए हैं, उनको देखने के बाद कि वो मतलब हमने एक अलग परिभाषा डिफाइन कर ली है जीने के अंदाज की, कि मैं चाहे जो भी करूं मेरी मर्जी। उस मर्जी में हम डिसिप्लिन भूल गए, हम पैरामीटर्स भूल गए, हम बाउंड्रीज भूल गए अध्यक्ष जी। Then feeling big change in life, ये भी स्ट्रेस हो जाता है। चाहे आप कोई भी जीवन का हिस्सा हो, आप ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, आप डिग्री लेने जा रहे हैं, आप विदेश जा रहे हैं, आप शादी हो रही है, घर में कोई अनहोनी हो गई है, बिग चेंज, ये भी इशू है। वरीड अबाउट समथिंग, इस समथिंग की कोई परिभाषा नहीं है, ये आप लोग अपने हिसाब से दिमाग लगा लीजिएगा कि किसकी समथिंग क्या है। बट समथिंग कुछ चल रहा है, लोग पूछते हैं क्यों परेशान हो, वाइफ पूछती है क्या बात है, बड़े परेशान से लग रहे हो। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं की डेफिनेशन कुछ नहीं। तो ये समथिंग है, वो आपका अपना अपना अलग है।
अपने अपने हिसाब से लगा लीजिएगा कि आप किसका समथिंग क्या है, पर समथिंग इज अ वेरी बिग इशू फॉर स्ट्रेस। देन फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, चाहे घर में हो, चाहे समाज हो, चाहे जाति विशेष को लेकर के हो सकता है। अभी मैंने चेंज की बात करी थी। सी, वन ऑफ द बिगेस्ट cause of stress is change. Everything changes except change. हर चीज बदलती है, अगर कुछ नहीं बदलता है तो वो है बदलाव। बदलाव आएगा ही आएगा। उसी कमरे में हम लोग एसी, पंखा और एक एसी फेल हो जाता है और उसी कमरे में हम 4 कपड़े पहन के बैठते हैं। कहते हैं कि देखो हवा कहां से आ रही है, चेक करो, डिस्टर्बेंस हो रही है, ठंड लग रही है। बदलाव आएगा ही आएगा। नेचर है, सिस्टम है, सर्कमस्टांसेस, एनवायरनमेंट है। द डिफिकल्ट टास्क, द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ द एंटायर यूनिवर्स इज टू एक्सेप्ट द चेंज और एकोमोडेट द चेंज, एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर स्ट्रेस, बिकॉज हम कोप अप नहीं कर पाते तुरंत उसके साथ। अब जनरल क्या होता है, कई बार अपॉर्चुनिटीज ही हमें स्ट्रेस क्रिएट कर देती हैं। बेटा यूएस जा रहा है, अब मेरा बेटा है वो जिद बढ़ गया है, एक ही बालक है मेरा, बड़े लाड प्यार से बाला सिंह साहब, अब वो कह रहा है कि पापा मैं तो यूएस जाऊंगा। अपॉर्चुनिटी है, अब अपॉर्चुनिटी उसके लिए, मेरे तो स्ट्रेस है भाई। अरे हिंदुस्तान में ले भाई, सब कुछ है, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, उस पैसे को हम खाएंगे, चबाएंगे, क्या करेंगे भाई? भगवान ना करे कुछ हमें हो गया तो 24 घंटे बाद तो तुम्हारा क्या नाम से मौसम बनेगा आने का। सर आपने बहुत अच्छी तरह से कॉजेज बताए, तो कॉजेज तो रहेंगे, it will remain। सर अभी आऊंगा सर उस पे, Solutions are more important। आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं सर, वो कॉजेज तो आ रहे हैं सर, उसी पे नहीं बिल्कुल डिस्कस करेंगे सर, पूरा डिस्कस करेंगे सर। कोई क्वेरी कोई करूंगा अनअटेंडेड ना रहे, और जहां भी आपको लगे सर आप ये टोक सकते हैं और रोक सकते हैं, मतलब नहीं बिल्कुल नहीं सर, प्लीज आई एम टेकन सर। नेक्स्ट स्लाइड उसके बाद वही चालू हो रही है सर, बिकॉज जब तक हम समझेंगे नहीं कि सर स्ट्रेस क्या है, कॉजेस क्या है, रीजंस क्या है, बिकॉज मेरी सर एक स्लाइड थी स्ट्रेस और लो स्ट्रेस। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हमें पता ही नहीं चलता हम स्ट्रेस के शिकार हो गए। शुगर हो जाती है हमारे को, हम बोल रहे हैं तो बड़े मस्त से, लेकिन दिमाग में सर अपनी अपनी हथेलियां देखिए आप लोग, अपनी अपनी हथेलियां देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे स्क्रैचेस नजर आएंगे, जिसके ज्यादा स्क्रैच हो और जो कहता हूं मैं बहुत खुश हूं, अपनी गलतफहमी दूर कर ले, वो बहुत ज्यादा सोचता है। यहाँ पे पाम के साइड पे देख लीजिए, आपको अपने स्ट्रेस का लेवल मालूम चल जाएगा, आराम से चेक कर लीजिएगा, इट विल हेल्प यू आउट। देन कंस्ट्रेंट्स एंड डिमांड्स। अब साहब का मैनेजिंग स्ट्रेस, क्योंकि भाई स्ट्रेस के कॉजेस तो बहुत सुन लिए, अब बात आती है कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। देखिए सबसे पहले तो क्या है, एक्सरसाइज, द बेस्ट रेमेडी, बिकॉज जब आप फिजिकली एंड मेंटली अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक बूस्टअप रहता है और बाहर की विकृतियों से लड़ने के लिए आपको ताकत मिलती है। अब क्वेश्चन कम्स, इतनी मतलब व्यस्त जिंदगी में, इतनी तेज जिंदगी में हम एक्सरसाइज का हमें टाइम नहीं है, मैं उठ नहीं पाता हूं, मुझे ऑफिस जाना है, व्यापार में जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, 50 तरह की बातें हैं, तो एक्सरसाइज का टाइम कहां से निकालूं? मैं आपको एक छोटी सी टिप दे रहा हूं, 4 से 5 मिनट खाली आपके डेली लगेंगे, जिसको आप जब भी चाहें, जस्ट 4 to 5 मिनट्स, आप जब भी चाहें, जैसे भी चाहें, आप उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, एंड द आउटपुट ऑफ दैट एक्सरसाइज विल बी इक्वलेंट टू 30 मिनट्स रिगरस एक्सरसाइज। और मजे की बात क्या है, उम्र और उससे भी कोई उससे दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश देखते हैं क्या नाम है,
ये छोटी सी एक्सरसाइज है जो कि आप लोग अगर उसको रिपीट करेंगे, ना उसके लिए कोई जगह चाहिए, ना समय चाहिए, ना कोई दिक्कत है, बहुत कूल है, करते रहिए उसको आप लोग। ओनली 7 स्टेप्स। मैं शॉर्ट में बताऊंगा बिकॉज टाइम लिमिटेड होता है हमारे पास, लेकिन उसको रिपीटिशन आपको हर स्टेप को 20 बार करना है। 30 मिनट का एक्सरसाइज, हार्ड एक्सरसाइज, वर्किंग एक्सरसाइज का आपको आउटपुट मिलेगा। यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग। दूसरा, देन इंटरसेक्शन, then अपनी ईमानदारी से अपने लिए मेरा दावा है, आप कितने स्ट्रेस में होंगे, कितने स्ट्रेस में आप होंगे, आप रिलीफ फील करेंगे। मेरा दावा है जब भी आपको स्ट्रेस लगे, एक बार रिपीट कर दीजिए रिकॉर्ड। सर, you start from here, then जितनी आपके अंदर पावर आप लगा सकते हो, जैसे मैल नाथ में मतलब मैल को बीटते हैं ना, उस तरीके से मतलब पूरा तभी ऐसे मन से अपने लिए, भाई अपने आप से धोखा नहीं, बात समझिए, अपने आप से धोखा नहीं, अपने आप से प्रेम करिए। अपने आप से प्रेम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज पर आप करते हैं और कभी कर लीजिए, जब चाहे तब कर लीजिए, कोई टाइम रिक्वायर्ड नहीं है। स्वास्थ्य खराब है तब भी कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, ना आपके हार्ट पे असर आएगा, ना कहीं शरीर पे असर आएगा। कूलली, रिलैक्सली आप आगे चल सकते हैं। अभी भी जिन्होंने अगर पूरे मन से किया होगा तो देख रहे होंगे उनके दिमाग पे एक ऊर्जा का जो ऑलरेडी इग्निशन चल चुका होगा, वो खुद आप लोग फील कर सकते हैं मतलब। और लास्ट जब हम पूरा लगता है कि हमें मन की थोड़ा और शांति चाहिए, तो करके अपने हाथों को रख करके अपनी आंखों पे रखें और 5 बार ओम यहाँ से नाभि से खींचते हुए ओम मन की शांति मिलेगी। आप कितने स्ट्रेस में हो, कितनी परेशानी में हो, आप अचानक महसूस करेंगे कि दिमाग आपका एकदम स्थिर हो गया है, दिमाग आपका एकदम कूल, काम एंड क्लूलेस, कुछ नहीं है दिमाग में, ठीक है। देन रिलैक्स योर मसल्स। अभी देखो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस साहब बड़ी अजीब सी चीज है, मैंने बताया ना कि बॉडी में स्ट्रेस चालू हो गया है और हमें पता भी नहीं है, इसीलिए मैंने स्लाइड दिखाई थी स्ट्रेस और नो स्ट्रेस। हम लोग काम कर रहे होते हैं, बैठे रहेंगे, गृहिणियां हैं वो रसोई में लगी रहेंगी, ऑफिसों में हम लोग बैठे रहेंगे, सिंह साहब हैं, HR भाई पूरा व्यवस्था संभालते हैं, एक बार कुर्सी पे बैठ गए तो बैठ गए, गई 2-4 घंटे की। लेकिन शरीर आपका इस बात को नहीं मानता है, आप कितने काम के व्यक्ति हैं, शरीर आपसे बदला लेता है। तो रिलैक्स योर मसल्स ऑन एवरी 1 आवर। आफ्टर एवरी 1 आवर आपको अपना गेस्चर, पोस्चर चेंज करना है। आप महसूस करेंगे, आप कल से इस प्रैक्टिस को करिएगा, आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली शाम को आप देखेंगे कि आज जितनी थकान आपको थी, कल उतनी थकान आपको नहीं मिलेगी। उसका बहुत सिंपल तरीका है, अगेन मैं दिखाता हूं। ये
सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? बिल्कुल पूरा। सबसे पहले तो आप लोग पहले जैसे बैठे होते हैं तो सीट से उठ जाइए, 1 घंटे का टारगेट बना लीजिए, 1 घंटे बाद कहीं घूम के आइए। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ काम का भाई लोग ऑफिस में भाई काम घूमता रहता है भाई। सर सवाल पूछ सकते हैं लोग, कहाँ घूमते रहते हो भाई, 1-1 मिनट चले जाते हो। 1 घंटे बाद सीट से उठ जाइए भाई, अपनी सीट पे ना कुछ डिस्टर्ब कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यही आराम से कर लीजिए। 20 टाइम्स रिपीट करिए, कूल रिलैक्स, पंखा देखिए, लाइट देखिए, अड़ोस देखिए, पड़ोस देखिए, जो करना है करते रहिए। क्या प्लानिंग करनी है क्या नहीं करनी है, नोबडी स्टॉपिंग यू, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा आपको। बैठे बैठे जूते पहन रखे मैंने, अंदर योर फिंगर्स टोस उनको हल्का चला लीजिए, बीच बीच में हल्का सा चला लीजिए, हल्का चला लीजिए। ब्लड का जो संचार है वो शरीर में वापस हो जाएगा, दिमाग के अंदर जो स्थिरता है वो खत्म हो जाएगी, और जो स्ट्रेस जो बढ़ते जा रहा था ठीक है सर, नो स्ट्रेस। समाजी ओके है, समाजी और ओके हो जाता है। चलिए कोई ना, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हाँ जी जरूर, नहीं होता वो कैसे उसमें से फंस गई थी, नीचे कैविटी है उसमें फंस गई थी, वो बीच में गैप में आ गई थी, गैप है उसके बीच में सर। तो 1 घंटे बाद अपनी जगह आप छोड़ दीजिए, आप कल से काम करिए। अगेन दावा है मेरा, शाम को आपका जो स्ट्रेस लेवल है, बिकॉज ब्रेन की एक लिमिट है, ब्रेन थोड़े टाइम पे जब आप कंटिन्यूस काम कर रहे होते हैं एक ही गेस्चर पोस्चर में, ब्लड फ्लो धीरे हो जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और बॉडी में एक्टिविटी खत्म हो जाती है, तो उसका असर डायरेक्ट हमारे दिमाग पे आता है, दिमाग से स्ट्रेस आता है, हेडेक होना चालू हो जाएगा और कहीं ना कहीं पेन होगा, वो डिप्रेशन चालू हो जाएगा। लाइक दिस आपके पास अगर 2 मिनट और हैं तो गर्दन को अपनी आप फॉर इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 1 2 3 4 5 again you are all okay for the work। आपका मात्र 1 मिनट लगा, बिकॉज जहां पे आप टोस को यूज कर रहे थे वहां पे आपको उठना भी नहीं था, टोस आप बैठे बैठे यूज कर सकते हो। बट ये चीज ध्यान रखिए आप लोग, यू हैव टू डू दिस इंटेंशनली, नियम बनाना, नियम बनाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर नियम नहीं है तो डिस्टर्बेंस रहेगी, मतलब ये दोस्ता कि मैं अचानक ख्याल आया और मैं अचानक चालू कर दूं। डीप ब्रेथ, लंबी सांस। जब कभी मन कुंठित हो, बाबा रामदेव भी यही बताते हैं, ये पूरे विश्व में और हर जगह एक्सेप्टेड योग है डीप ब्रेथ। आप करिए जब भी आप प्रेशर में हो, खासकर जब आपको लग रहा है कि आपका दिमाग थोड़ा सा और थक गया है तो डीप ब्रेथ लीजिए। एक पीछे पैनिक अटैक था, जब लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी लग रही है, आपको लग रहा है कि शायद कुछ डिस्टर्बेंस शरीर में ज्यादा है, उस टाइम एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत छोटी सी, जिसको आप रेगुलर भी कंटिन्यू कर सकते हैं, रेगुलर भी, जब आपका मन करे अपने आप से। होल्ड योर थंब और एक एक उंगली को अपने आप बंद करना है,
काम करते हुए भी, चलते हुए भी, फोल्ड योर थंब, एक एक उंगली को आराम से 2-4-6 बार करते रहिए। जब से मन लगे आपको कि थोड़ी सी एंजाइटी लग रही है, थोड़ा सा वो लग रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि बार से हम उंगली छटका रहे होते हैं, तो कायदे से उंगलियां बंदी कर रहे होते हैं। तो उसको ऐसा ना करके पहले क्लोज योर थंब, धीरे से एक उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, उतना पेशेंस रखना है भाई। देखिए कोई भी बॉडी में आपकी संचार की व्यवस्था ठीक तब होगी जब आप पेशेंटली चीजों को करेंगे। देन ईट वेल, उल्टा सीधा खाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, इंडाइजेशन होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होंगी, वो आपको प्रॉब्लम इशू करेंगी। मी टाइम सबसे जरूरी। लोग कहते हैं यार मरने का टाइम नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। किस किताब में लिखा है? अभी कोरोना था, पूरी दुनिया थम गई, आदमी बीमार होता है, अस्पताल में जमा हो जाता है, फिर कहां टाइम निकल जाता है, फिर कहां जाता है आपका व्यापार। मेरे साथ है, मैंने कहा ना 500 लोगों का मेरे साथ है, मेरे लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं तो 4 बजे उठ जाता हूं। अगर मुझे 8:30 अपने कॉलेज पहुंचना होता है, मेरा टाइम 8:30 का है, मैं 4 बजे उठता हूं, 5 बजे घर छोड़ देता हूं। मैंने मी टाइम निकाल लिया कि आई हैव टू डू एक्सरसाइज ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो मैंने दिमाग लगा लिया कि मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगा, मींस करूंगा। तो मैं 7 बजे उठने की जगह मैंने पहले उठना चालू कर दिया, सिस्टम कंटिन्यू हो गया। मी टाइम, किसी को गाने का शौक है, किसी को तैरने का शौक है, किसी को एक्सरसाइज का शौक है, किसी को पढ़ने का शौक है, स्पेयर मी टाइम उसको निकालिए, टेंशन फ्री हो जाए। गुनगुनाइए, गुनगुनाइए। कौन डिस्टर्ब कर रहा है आपको? गुनगुनाइए। द वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेस रिलीफ। हल्का सा गुनगुनाइए, मस्त रहिए। लोग उल्टा पूछेंगे भाई साहब क्या बात है, क्या मिल गया है ऐसा? बस मस्त हो आप आराम से दुनिया में, टेंशन फ्री, रिलैक्स, चिल। इंटरेक्शन, देखिए दुख बांटने से कम होता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं सब लोग, अपनी दुखों को, तकलीफों को अपने किसी ऐसे साथी से जिससे आप लोग बातें कर सकते हैं, कह सकते हैं, सुन सकते हैं, इंटरेक्शन करिए। बात करेंगे, बात बढ़ेगी। मेडिटेशन, उसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। योग अभ्यास, योगा, हमारे जैन साहब भी बैठे हुए हैं और भी यहाँ पे लोग एक्सपर्ट हैं। योगा अपने अपने हिसाब से कोई योगा करे, एक्सरसाइज करे। लर्न टू से नो, ये बहुत अच्छा स्ट्रेस खत्म करने का तरीका है। लर्न टू से नो। क्यों खाम का टेंशन ले लो भाई? वो गठरी 100 किलो भी उठा नहीं पाओगे, हैं? भैया मना कर दे, दब जाएगा बोझ के नीचे। वो बोझी तो है, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस बोझी तो इसको लेके चल रहे हो आप। मना कर दो भैया मेरे बस की बात नहीं है, मैं उठा पाऊंगा 80 किलो। परसों जिम में एक्सरसाइज चल रही थी, एक युवा आया, मैंने मना किया भाई ये प्लेट तू उठा नहीं पाएगा। अरे साहब कैसे हैं? मैंने ठीक कर ले भाई। 3 लोग लगे उसको उठाने में। उसके बाद से लर्न टू से नो, मना कर दीजिए आप, सॉरी साहब मैं नहीं कर पाऊंगा। आईएएस के एग्जाम में यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुतों के इंटरव्यू लिए होंगे, फौज में भी अधिकारी बनाए होंगे इन्होंने। वहां पे ये लोग पसंद करते हैं जब वो इंसान, बच्चा कहता है ना सर आई डोंट नो, तो इंटरव्यू बड़ा खुश होता है, कितनी ईमानदारी से उसने बोला कि दिस ही डोंट नो। दिक्कत तब आती है जब वो पूछ तो रहे हो क्या आप क्या नाम है, कि भाई ताजमहल का है सर, वो एक्चुअली वो दिल्ली जब हम गए थे सर, वो दिल्ली हो गए छोड़ना होगा, ताजमहल का है। साफ साफ बोल सर आई डोंट नो। से लर्न टू से नो, आपका स्ट्रेस आधा खत्म हो लेगा। शो ग्रेटिट्यूड, मानवता और धन्यवाद। इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि भगवान का धन्यवाद करने में उसको तकलीफ होती है। कोई आपकी हेल्प कर रहा है, आप देखिए धन्यवाद करके देखिए, आपके अंदर एक अलग भाव पैदा होगा, एक विचार पैदा होगा। आप करके देखिए, और हो सकता करते भी हो। मैंने स्टार्टिंग में बोला था
मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं। बहुत से लोग इस काम करते होंगे, नहीं करते वो कर लीजिए, करते थोड़ा एक्स्ट्रा करिए। बहुत से लोग भगवान को नहीं मानते, मैं अरे क्या हो भाई, मैं करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए ना, नेचर का धन्यवाद दीजिए। ये हवा ले रहे हो आप, सांसें ले रहे हो, ये पानी पी रहे हो, ये जलवायु का इस्तेमाल कर रहे हो आप, धन्यवाद दीजिए ना। तो आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, बिकॉज आपके अंदर मैं की भावना खत्म होगी और नेगेटिविटी आपके आसपास से दूर चली जाएगी, बिकॉज अब आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड आ गया है, सद्भावना आ गई है। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। खामखा में आजकल रोड होती हैं, मतलब कोई जान का नहीं, पहचान का नहीं, मेरे गांव का नहीं, मेरे खेत नहीं बट रहे, मेरी 40 वक्त ने हॉर्न क्यों मार दिया।